سب سے پہلے آگاہ کریں گے عام انتخابات کی گہما گہمی کاغذات کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل کسی نے چھپائے اثاثے تو کوئی نکلا ٹیکس ڈیفالٹر کاغذات کھنگالنے پر بڑے بڑے نام ریٹرننگ افسران کی پکڑ میں آئے فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ خان راجہ ریاض فاروق حبیب طلعت چودھری عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی منظور پی ٹی آئی رہنما سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ سابق ایم پی اے ڈاکٹر اسد معظم کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ مکمل نون لیگیوں کے کاغذات منظور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے فیصل آباد میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ مکمل نون لیگیوں کے کاغذات منظور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد سابق ایم این اے ڈاکٹر نثار احمد جٹ سابق ایم پی ڈاکٹر اسد معظم کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ریٹرننگ افسران نے نون لیگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے رانا ثناء اللہ خان عابد شیر علی طلال چودھری راجہ ریاض احمد نواب شیر وسیر شیخ محمد یوسف حضرت جاوید گجر سمیت دیگر امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے گرین سگنل مل گیا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے والے امیدوار اپیلیٹ ٹریبیونل میں اپیل دائر کر سکیں گے یہاں 3 جنوری سے 10 جنوری تک اپیلوں پر فیصلے سنائے جائیں گے 11 جنوری کو امیدواروں کی نظر ثانی فہرست لگے گی جبکہ 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے امیدواروں نے بڑے مارکے کی تیاری کر لی کاغذات نامزدگی منظور ہونے والے امیدوار کل سے باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے کیمرامین زبیر کے ساتھ عبدالرحمان سٹی 41 فیصل آباد جنگ میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل مکمل قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 7 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے جبکہ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر 10 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے 3 قومی اور 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں سے اہم شخصیات کے کاغذات نامزدگی منظور این اے 108 سے مختوم فیصل صالح حیات شیخ محمد اکرام غلام بی بی بھروانہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ پی پی 129 سے محمد آصف معاویہ قمر حیات اور شہباز علی اور خالد غنی کے کاغذات منظور ہوئے جبکہ 4 امیدواران کے کاغذات مسترد کیے گئے پی پی 130 سے محبوب سلطان امیر عباس نوازش علی خان اور شہباز احمد کے کاغذات منظور ہوئے پی پی 131 سے تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں توبہ ٹیک سنگھ میں قومی اسمبلی کے 3 اور صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں میں انتخابات ہوں گے ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں امیدواروں کی ابتدائی لسٹ آویزہ کر دی گئی مجموعی طور پر 237 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جن میں سے 54 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جبکہ 183 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں این اے 105 اور این اے 106 اور 107 میں 15 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے قومی اسمبلی کے 3 حلقوں میں 59 امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں سے 39 امیدواروں کے کاغذات مسترد جبکہ 124 امیدواروں کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں قومی اسمبلی کے کاغذات منظور کر لیے گئے صوبائی اسمبلی کے 6 حلقوں سے 39 امیدواروں کے کاغذات مسترد ہوئے جبکہ 124 امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے ہیں مجموعی طور پر 237 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے جن میں سے 54 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جبکہ 183 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں شنیور ضلع کے 2 قومی اور 4 صوبائی حلقوں کی لسٹیں آویزہ کر دی گئیں این اے 93 میں تحریک انصاف کے رہنما ملک غلام عباس نسوانہ سابق چدھڑ احسن لالی زاہد حسین محمد سرفراز اور اعجاز حسن کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے این اے 94 پر ٹوٹل 26 امیدواروں میں سے 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے محمد عثمان اور غلام شبیر کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے پی پی 94 سے سابق ایم پی اے تیمور لالی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے جبکہ ریٹرننگ آفیسر نے دیگر 14 کاغذات نامزدگی منظور کر کے فارم 32 جاری کر دیا حلقہ پی پی 95 سے مسلم لیگ نون کے سابق ضلعی صدر مہر آفتاب ہرل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے مہر آفتاب ہرل بینک کے نادہندہ نکلے ریٹرننگ آفیسر نے 17 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے فارم 32 جاری کر دیا جبکہ پی پی 96 سے امیدوار قلب عباس کے کاغذات نامزدگی مسترد جبکہ 12 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ادھر فارم 32 جاری کر دیے گئے پی پی 97 سے ریٹرننگ آفیسر نے 21 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے
सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पाक आर्मी और रेंजर्स तलब कर लिए गए। जिला टोबा टेक्सिंग में पाक आर्मी की 5, रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश की गई है। टोबा टेक्सिंग पुलिस ने इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। जिला में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पाक आर्मी की 5, रेंजर्स की 3 कंपनियां तैनात करने की सिफारिश की गई है। पुलिस जिला के मुताबिक टोबा टेक्सिंग पुलिस के पास नफरी की शदीद कमी है। 1500 पुलिस एहलकारों से इलेक्शन की ड्यूटी लेना इंतहाई मुश्किल होगा, जिसकी वजह से पाक आर्मी और रेंजर्स की खिदमात तलब की गई है। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल का अमल भी मुकम्मल हो गया। जिला में 237 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे। जिला टोबा टेक्सिंग में कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात इलेक्शन बोर्ड ने उम्मीदवारान के फहरिस्त जारी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सालाना इंतखाबात 13 जनवरी को होने जा रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान से फहरिस्त जारी कर दी गई। सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए 6, फाइनेंस सेक्रेटरी की 2, ज्वाइंट सेक्रेटरी 6, लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर 5 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। भवाना में सर्दी बढ़ते ही सुई गैस लोड शेडिंग में इजाफा। सुबह शाम खाने के औकात में गैस लोड शेडिंग मामूल। एलपीजी और लकड़ी भी पहुंच से दूर। खवातीन का घरों में खाना तैयार करना इंतहाई मुश्किल हो गया। हर साल जब भी सर्दियां आती हैं गैस लोड शेडिंग अरूज पर होती है। भवाना में गैस लोड शेडिंग की वजह से शहरी ज़हनी कोफत का शिकार है। बेशतर इलाकों में घंटों गैस गायब रहती है। सुबह और शाम के औकात में गैस न होने से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर बच्चे और बड़े नाश्ता किए बगैर स्कूल और दफातर जाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना था कि होटलों से खाना खरीदने की सिकत नहीं रखते। एलपीजी 350 रुपए किलो, लकड़ी 1200 रुपए मन में फरोख्त हो रही है। सुबह जब नाश्ते का टाइम होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हमने अपने कामों पे जाना होता है, तो उस वक्त भी गैस नहीं मुयस्सर होती। तो जब शाम को आते हैं तो शाम को भी गैस नहीं मिलती। तो जो एलपीजी है वो 350 रुपए किलो है, वो भी नहीं अफोर्ड कर सकते। एक तो गैस महंगी, ऊपर से गायब रहने से आवाम को 2 अजाब झेलना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत से इस मसले का नोटिस लेने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। कहीं गैस प्रेशर में कमी, कहीं गैस से गायब। चिन्योट में सुई गैस का प्रेशर इंतहाई कम, घरेलू सार्फिन परेशान। चिन्योट शहर के मुतादिद इलाकों में सुई गैस रूट गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गैस गायब। अंदरून शहर का प्रेशर इंतहाई कम हो गया। खवातीन को मुश्किलात का सामना। ना रात के खाने का कोई बंदोबस्त होता है और ना नाश्ते वगैरह का। शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं गैस नहीं होती, अगर आ भी जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि कुछ पकाया ही नहीं जा सका, इसीलिए बाहर से नाश्ता करने आए हैं। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जो है वो गैस का टाइम मुकर्रर था, और अभी जो है वो सुबह 6 बजे से पौने 8 बजे के करीब गैस चला जाता है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किलात का सामना होता है। और मैं गुजारिश करता हूँ ज़िले इंतज़ामिया से और पंजाब गवर्नमेंट से कि खुदारा हम पर रहम किया जाए। सुबह जो गैस की टाइमिंग है वो पूरे 9 बजे तक हो। गैस बहरान की वजह से शहरियों को जिंदगी का निजाम दरहम बरहम हो गया है। दफातर जाने वाले अफराद और तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को गैस की वजह से ज्यादा मुश्किलात का सामना है। गैस का जो मसला है ये हल किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी महकमा गैस से हमारी गुजारिश ये है कि महलों के अंदर विजिट करें। लोगों ने मशीनें लगाई हुई हैं गैस खींचने वाली, जो कि जिनके पास मशीनें वो तो गैस सारा खींच लेती हैं, और बाकी जो घरों वाले वो बेचारे खाना पकाने से बहुत परेशान रहते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से गैस का प्रेशर की बहाली के लिए इकदाम करने और कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन औरंगजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। सरगोदा रोड का फुटपाथ खस्ता हाल, मलबे के ढेर में तब्दील। कहीं स्लैबे गायब तो कहीं टूट फूट का शिकार। पैदल चलने वालों को मसाइल का सामना, हादसात का खतरा बढ़ने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद की गफलत ने सरगोदा रोड से मुलहिका फुटपाथ की हालत बिगाड़ दी। फुटपाथ अरसा दराज से शदीद खस्ता हाल, कहीं से स्लिपिंग गायब तो कहीं टूट फूट का शिकार है। शहरी का कहना था फुटपाथ की खस्ता हाली की वजह से सड़क पर चलना पड़ता है। मसरूफ तरीन रोड पर हादसा पेश आने का खदशा है। मुतलका हकाम होश के नाखून लें। अगर फुटपाथ पे ना चलेंगे तो अगर सड़क पे आएंगे कि एक्सीडेंट के भी खतरात ज़्यादा होंगे। तो ये मुतलका अदारे को चाहिए कि इनके तरफ को नज़रसानी करें। ज़ाहिर सी बात है पैदल चलना होता है कि फुटपाथ भी अगर सही ना हो तो फिर वो अगर सड़क पे चलेंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे। तो उनको चाहिए कि इनकी तरफ ध्यान दे। फिर बच्चे भी गुजरते हैं फुटपाथ पे, तो ज़ाहिर सी बात फिर गिरने का खतरा होता है। इलाका मकीनों समाजी हलकों ने आला हकाम से नोटिस लेकर फुटपाथ की खस्ताहाली जल्द दूर करने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ मोहम्मद अली नारू, फैसलाबाद।
18,000 का नवाकोट रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदगान के अदम तवज्जो के बायस सड़क की तामीरें ना हो सकी। नवाकोट रोड 9 साल से बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात है। शहरियों के लिए सफर करना आजाब बनकर रह गया। ताहम इतना अरसा गुजरने के बावजूद अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। नवाकोट का रोड खस्ता हाली का शिकार, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों के लिए सफर करना अजाब बनकर रह गया। ताहम इतना अरसा गुजरने के बावजूद अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करते नजर आते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नवाकोट रोड की तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। मोटरवे पे धुंध का राज। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। शोरकोट से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे को बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध के बायस मोटरवे को बंद किया गया। धुंध के मौसम में शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की गई है। फैसलाबाद में धुंध का राज है। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। दिल को संभालिए बात बिगड़ने से पहले। फैसलाबाद में अमराज़े कल्ब में मुब्तला मरीजों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। गुज़श्ता साल की निस्बत हार्ट अटैक के मरीजों में 50% इजाफा हुआ। फैसलाबाद में गुज़श्ता साल की निस्बत हार्ट अटैक के मरीजों में 50% इजाफा हो गया। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक OPD में आने वाले मरीजों की तादाद 6.5 लाख से तजावुज कर गई। गुज़श्ता साल इमरजेंसी में 14,000 जबकि रवां साल 21,000 मरीज रिपोर्ट हुए। OPD में रवां साल 6.5 लाख मरीजों ने तिब्बी मुआयना कराया। MS डॉक्टर राना नदीम का कहना था कि रवां साल इमरजेंसी मरीजों में 2500 मरीजों को फौरी प्राइमरी एंजियो की सहूलत फराहम की गई। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्राइमरी PCI का प्लान था वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सक्सेसफुल रहा और इसमें जो है हमने मोर देन 2000 पेशेंट जो है अराउंड अबाउट जो है 2500 के करीब जो प्राइमरी जो है हमने की। डॉक्टर राना नदीम का मजीद कहना था कि सर्जन न होने के सबब बाईपास ऑपरेशंस में कमी आई। गुज़श्ता साल 1200 और रवां साल 900 मरीजों के बाईपास हुए। हमारा है जो कि हमने एंजियोग्राफी जो है 5500 के करीब हमने एंजियोग्राफीज की और जो है इसके अलावा जो एंजियोप्लास्टीज थी वो 1400 जो इलेक्टिव केसेस थे वो हमने किए। कार्डियोलॉजी अस्पताल इंतजामिया की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल 1900 मरीज दिल के मर्ज के सबब वफात पा गए। कैमरामैन जुनैद अली के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। निगरान हुकूमत के खुसूसी इक़दामात। चिन्योट में शोबा सेहत के लिए साल 2023 हौसला अफजा। बुनियादी मराकज़ सेहत, दही मराकज़ सेहत को जदीद आलात के साथ आरास्ता किया। वज़ीर आला पंजाब का शोबा सेहत में बेहतरी लाने का अभियान। चिन्योट में सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दामात किए गए। जिला चिन्योट में पहली बार बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग का अमल शुरू किया गया। बुनियादी मराकज़ सेहत और देही मराकज़ सेहत को स्टेट ऑफ द आर्ट इमारतों में तब्दील करके जदीद तिब्बी आलात और अमले से लैस किया गया। ये हक पे जानब वो कहने में कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने BHUs खास तौर पे और RSCs को रिवैम्प किया है और ये हमारे मॉडल BHUs हैं और 24/7 यहाँ पे जो सर्विस डिलीवरी है उसको हमने इंश्योर किया है और वहाँ पे डॉक्टर्स, एम्बुलेंस और प्लस जो अद्वियात और बिलखुसूस जो अल्ट्रासाउंड लेवल तक की जो फैसिलिटी हमारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल BHUs हैं, आई थिंक ये अपनी मिसाल आप हैं पूरे सूबे में। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट को हेल्थ केयर कमीशन से पंजाब भर में पहला रेगुलर लाइसेंस दिलवाने के साथ साथ ISO सर्टिफाइड अस्पताल भी डिक्लेयर किया गया। अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और सर्विस डिलीवरी पर खसूसी तवज्जो दी गई। बुनियादी मराकज़ सेहत की बहाली से देही इलाकों के मकीनों को अपनी दहलीज पर जच्चा बच्चा की सेहत और दीगर इमराज की OPD सर्विस दस्तयाब हुई। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। नाज़रीन, साल 2023 में एजुकेशन सेक्टर में भी तब्दीलियां आई। हजारों नए तलबा के दाखिले, सैकड़ों स्कूलों की तज़ीन और आराइश, ताहम असातिज़ा की नई भर्तियां ना हो सकी। साल 2023 शोबा तालीम चिन्योट के लिए कैसा रहा, ये जानिए इस रिपोर्ट में। 697 सरकारी स्कूल मौजूद हैं, जिनमें साल 2023 में 20,000 से ज्यादा तलबा को स्कूलों में दाखिल कराया गया। 300 से ज्यादा स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के साथ साथ तज़यीन आराइश की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा कहते हैं तलबा को मायारी तालीम देने पर भी खसूसी काम कर रहे हैं ताकि बोर्ड में पोजीशन हासिल की जा सके। नेशनल लेवल पे जो हम आई थिंक जो बिगेस्ट चैलेंज है हमारा एज ए डेवलपिंग नेशन वो हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का है कि हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा तकरीबन बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं। तो उसमें हिस्सा बकदर जो सा जी हमने भी अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और इस साल तकरीबन 20,000 से ज़्यादा हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों की एनरोलमेंट की है। दूसरी जानिब साल 2023 में भी जिला भर में 1359 असातिज़ा की हाली सीटों पर भर्तियां ना हो सकी, जिसकी वजह से बाज़ तालीमी इदारों में दरसो तदरीस का अमल मुतासिर हो रहा है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट।
रवा साल यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों में गुज़श्ता साल के निस्बत 30% कमी हुई। नौकरियों की कमी, मुख्तलिफ शोबेजात के टेंडर्स में उतार चढ़ाव दाखिलों में कमी बड़ी वजह करार पाई। कई डिपार्टमेंट्स में दाखिलों की कमी के बायस सीटें खाली रह गईं। रवा साल फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज के दाखिलों में गुज़श्ता साल की निस्बत 30% कमी हुई। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और विमन यूनिवर्सिटी में सालाना दाखिलों में अक्सर डिपार्टमेंट में दाखिलों की कमी के बायस काफी सीटें खाली रह गईं। कंपैरेटिवली जो अप्लाइड साइड के नहीं थे, सोशल साइंसेज के या हम बाकी लाइफ साइंसेज के, फिजिकल साइंसेज के, जिनकी मार्केट ओरिएंटेशन कम थी, जॉब अपॉर्चुनिटी कम थी, उसमें बच्चों का ट्रेंड कंपैरेटिवली कम रहा। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर नासिर अमीन ने नौकरियों की कमी और मुख्तलिफ शोबाजात के ट्रेंड्स में उतार चढ़ाव को दाखिलों में कमी की वजह करार दे दिया। पेरेंट्स जो हैं वो उसी फील्ड को प्रेफर करते हैं जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, तो यही रीज़न है। और दूसरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो है ही उसका ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ही। वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर अमीन कहते हैं, फीसें ज्यादा, नौकरियां कम होने से यूनिवर्सिटीज के दाखिलों में कमी वाक़या हुई। अब यूनिवर्सिटीज को भी ट्रेंड के मुताबिक नए शोबाजात की तरफ जाना होगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। HEC की नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में तलबा को अमली तरबियत देना लाजिम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने साल 2024 से HEC की पॉलिसी नाफिज करने के लिए काम मुकम्मल कर लिया। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने BS प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए नई पॉलिसी मुरतब कर ली। नई अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी में तलबा को पढ़ाई के दौरान अमली तरबियत देना लाजिम करार दे दिया गया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने आइंदा साल से HEC की पॉलिसी नाफिज करने के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया। डायरेक्टर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज डॉक्टर गुलाम मुर्तजा कहते हैं, हर BS प्रोग्राम में तलबा के लिए इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट लाजिम होंगे। HEC ये चाहती है कि डिग्री के बाद स्टूडेंट एक सिर्फ किताबी सा इल्म ना रह जाए, बल्कि उसकी एप्लीकेशन भी हो। तो एप्लीकेशन के हवाले से जो इंटर्नशिप है उसको कंपलसरी किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से घर और घर से यूनिवर्सिटी, बल्कि वो माशरे के साथ उसका ताल्लुक होना चाहिए और वो जाके कंट्रीब्यूट करे, डिलीवर करे। डॉक्टर गुलाम मुर्तजा का मजीद कहना था कि BS के निसाब में एंटरप्रेन्योरशिप समेत सोशल साइंसेज के मज़ामीन भी शामिल किए गए हैं। अब MPhil की तर्ज पर BS प्रोग्राम से ही तलबा को रिसर्च और प्रोजेक्ट राइटिंग कराएंगे। तमाम शोबाजात को नई पॉलिसी के मुताबिक निसाब अपडेट करने का टास्क दे दिया गया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। ऑटो रिक्शा के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का सुनहरी मौका। फिटनेस सर्टिफिकेट के असूल के लिए लेट फीस माफ। 2 फरवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को जुर्माना नहीं होगा। निगरान पंजाब हुकूमत ने ऑटो रिक्शा मालिकान को फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने का सुनहरी मौका फराहम कर दिया। गुज़श्ता 2 बरस से फिटनेस सर्टिफिकेट न बनवाने वालों को फिटनेस सर्टिफिकेट के हसूल के लिए लेट फीस माफ कर दी गई। सेक्रेटरी RTA कहते हैं, 2 फरवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वालों से जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। पिछले 2-3 साल से इनका जो फिटनेस सर्टिफिकेट ये लोग नहीं बनवा रहे थे और जितना वो लेट कर रहे थे उनका हर साल उनको फाइन पड़ता है। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये किया है कि इनको 2 जनवरी तक टाइम दिया है कि आप जो है अपना फिटनेस सर्टिफिकेट विक स्टेशन पे जाके बनवा लें और आपको फाइन बिल्कुल नहीं किया जाएगा। व्हीकल्स इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस का दफ्तर फैसलाबाद में ना होने पर इंतजामिया की जानिब से विक्स की मोबाइल वैन फिटनेस सर्टिफिकेट देगी। विक्स मोबाइल यूनिट 2 फरवरी तक लारी अड्डा में काम करेगा, जिससे ऑटो रिक्शा मालिकान इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। गाड़ी इंजन, लाइट्स और बॉडीज की फिटनेस को कानूनी मेयार के मुताबिक जाँच कर सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सबसे पहले हम उसमें ब्रेक टेस्ट गाड़ी का करते हैं, उसके बाद उसको फिजिकली चेक करते हैं, उसके इंडिकेटर्स, ब्रेक लाइट्स उसकी काम करनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास हेडलाइट टेस्टर होता है, उससे हम उसकी लाइट्स चेक करते हैं, हाई बीम, लो बीम, दोनों चीज़ें। और उसके बाद थर्ड पे हमारे पास थर्ड पोजीशन पे होता है उसका मिशन टेस्ट, जिसमें इंजन का और धुएं का टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। 2 फरवरी के बाद ऑटो रिक्शा मालिकान को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गुज़श्ता सालों का जुर्माना भी अदा करना होगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। बढ़ती आबादी बेरोजगारी सर चढ़ कर बोलने लगी। फैसलाबाद में महकमा बहबूद आबादी में कॉमेडिया नुमाइंदगान के साथ आगाही सेशन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बहबूद आबादी ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के हवाले से ब्रीफिंग दी। बढ़ती हुई आबादी के मसाइल की आगाही और हल के लिए मीडिया का ताउन, माशरती आगाही और तब्दीली के लिए अजहद जरूरी है।
فیصل آباد میں محکمہ بہبود آبادی نے میڈیا نمائندگان کے ساتھ آگاہی سیشن کا اہتمام کیا، جس میں ڈسٹرکٹ آفیسر بہبود آبادی نے پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کہا، بڑھتی ہوئی آبادی کے نتیجے میں بے روزگاری سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ جس تیزی کے ساتھ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے بریفنگ میں دیکھا کہ 2.5 تقریباً 2.5% سالانہ کے حساب سے جو ہے وہ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر 28 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی پاکستان کی، یعنی اس وقت اگر ہم 24 کروڑ ہیں تو اگلے 28 سالوں کے اندر پاکستان کی آبادی 48 کروڑ ہو جائے گی۔ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے، جبکہ تعلیم، صحت کے وسائل کم اور آبادی زیادہ ہے، جس میں آنے والے وقت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ پیٹرولنگ پولیس کا پنجاب کا ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کا باقاعدہ آغاز، فیصل آباد کی پیٹرولنگ پوسٹوں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ جاری ہے۔ فیصل آباد میں شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ روشن والا، پینسرا اور جلا موڑ پیٹرولنگ پوسٹوں پر ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، جبکہ تمام پیٹرولنگ پوسٹوں پر کمپیوٹرائزڈ لائسنس کی فراہمی کا سسٹم فعال ہو چکا ہے۔ پاکستان بھر کے کسی بھی شہر سے تعلق رکھنے والے شہری پیٹرولنگ پوسٹوں پر لائسنس کی سہولت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پیٹرولنگ آفیسر ملک محمد امین نے خود ڈرائیونگ ٹیسٹ لیے۔ ڈسٹرکٹ پیٹرولنگ آفیسر ملک امین کا کہنا تھا، شہریوں کو باوقار طریقے سے لائسنس فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے آئی جی صاحب کا ویژن ہے کہ پاکستان میں جو زیادہ سے زیادہ پنجاب بھر میں زیادہ سے زیادہ لائسنس جو ہے نا ایشو کیے جائیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے اس کا جو پروسیجر ہے وہ لرننگ لائسنس کا، جس کی میعاد جو ہے 42 ڈے ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس آتے ہیں باقاعدہ، یہ ان کا ہمیں سائن ٹیسٹ لیتے ہیں، جو کہ ہمارا آن لائن ہے لاہور کے ساتھ ہی۔ اگلے مرحلے میں تمام پیٹرولنگ پوسٹوں پر لائسنس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد سوشل ویلفیئر کے ادارے اولڈ ایج ہوم عافیت میں والدین کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ مغرب کی تقلید کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں بھی والدین کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیصل آباد میں بچوں کی پیار کے طلبگار والدین کا 1 سال انتظار میں گزر گیا۔ سوشل ویلفیئر کے ادارے اولڈ ایج ہوم عافیت میں والدین کی تعداد بڑھنے لگی۔ اولڈ ایج ہوم عافیت میں 2023 میں والدین کی تعداد 50 سے زیادہ ہو گئی۔ انچارج رابعہ خالد کا کہنا تھا کہ تعداد بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ والدین اور بچوں کے درمیان ناچاکی ہے۔ گھروں میں لڑائی کی وجہ اسلام سے دوری بھی ہے۔ 2023 میں ہمارے پاس جو ہے نا 49 تک اسٹرینتھ رہی ہے، 49-50 تک بھی گئی ہے۔ تو موسٹلی جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جن کے بچے ہیں تو ہم ان کا پیچ اپ کروا دیں، ان کی صلح کروا دیں، وہ تو فیملیز کے ساتھ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو وجوہات میں جو ہے بہت حد تک جو ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے ہیں کہ گھروں میں آپ کی بن نہیں رہی۔ بدقسمتی سے ہمارے خون کے رشتے سفید ہو گئے ہیں۔ اب پرایا خون اپنا اور اپنا پرایا لگتا ہے۔ تاہم اولڈ ایج ہوم میں آنے والے والدین آج بھی اپنے بچوں کے منتظر ہیں۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔